try, share it on your exam practice groups. Those answers are available ready 2023 से मार्च 2023 से मार्च 2025 तक के मेरे पास अवेलेबल हैं कैम स्कैन में, तो आई सेंड यू इंशाल्लाह। जी बच्चों, ये आ गया आपका पेपर मई जून 2024। सिमिलर डिफिकल्टी का पेपर आप लोग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं P2 में। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा रिस्पॉन्स। एक सेकेंड में एक चीज चेक कर लूं कि मेरी रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। यस इट हैज। सो द यूरोजोन, अ डायलेमा फॉर द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन यूनियन में सेंट्रल बैंक जो यूरोपियन यूनियन का है वो सब कंट्रीज का डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, इन्फ्लेशन टारगेट्स वगैरह। तो वो इंडिविजुअल कंट्रीज को उसकी अपनी लिबर्टी नहीं है। द यूरोजोन कंसिस्ट ऑफ 19 यूरोपियन कंट्रीज। ये 26 होते थे, अब 19 रह गए states that they have agreed to use a common currency, the euro, and monetary policy, both of which are governed by ECB, European Central Bank. The ECB sets interest rates for all 19 members of the Eurozone, and since July 2021 has aimed to maintain a rate of inflation at 2% in the medium term. Interest rates have been held at 0% since March 2016. बट बेसिकली हलाल बैंकिंग हो रही है वहाँ पे। ये है जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डायग्राम विद सम फ्लक्चुएशन। आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे बिहेव कर रही है। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि इस पर क्वेश्चन होगा। अब जी फिगर 1.1 यूरोजोन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसने बताएंगे आपको। ये वो सीपीआई फिगर्स हैं ईयर ऑन ईयर, सॉरी मंथ ऑन मंथ, March 21 से February 22 के। In March 2022, the annual inflation rate hit a record high for the Eurozone of 7.5%, and is forecast to continue to rise throughout 2022. Additionally, according to ECB Vice President, annual economic growth is expected to fall from 4.6% at the end of 2021 to around 0% at the end of 2022. तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ गिरने का चांस है। Most of the impact of these changes is expected to fall on consumers. Much higher energy costs and rising food prices tend to have a more severe effect on poorer households and those on fixed incomes. किसी को डेटा में समझ ना आया हो कुछ? Okay, G, the main cause of rapid increase in the inflation rate are supply side factors. The rise in energy prices result from a combination of the COVID-19 pandemic and the conflict between Russia and Ukraine, which have reduced supplies of oil and gas. एक वजह उसने इन्फ्लेशन की बताई कि जी सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से बिजली की प्राइसेस बढ़ी हैं या गैस वगैरह जो भी एनर्जी सोर्सेज थे, और साथ में बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा था तो ऑयल गैस की सप्लाई कम हुई। कोविड-19 पेंडेमिक का अपना इफेक्ट आया। So additionally, the Eurozone labor market is increasingly suffering from a shortage of supply as unemployment has fallen to a record low of 6.8%. एक और वजह लेबर सप्लाई कम होना भी है इन्फ्लेशन में। इन February 22 with further falls predicted, वो कहते हैं जी मजीद अनएम्प्लॉयमेंट कम होने वाली है, यानी लेबर सप्लाई की शॉर्टेजेस मजीद बढ़ने वाली है। Because the rise in rate of inflation is almost exclusively supply side driven, the ECB fears that this will lead to further falls in economic growth, leading to a period of stagflation. मैं क्लासेस में ये टर्म मेंशन करता रहता हूँ, स्पेशली A2 में तो बहुत मेंशन करता हूँ। मुझे बताइएगा कोई बच्चा व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? उसने खैर खुद ही बता दिए। Where an economy experiences high inflation and low economic growth at the same time. जी बच्चों, सबको अभी तक क्लियर है मैं जो बात कर रहा हूं? 16 बच्चे हुए, चलें, नॉट टू बैड, जितने आ रहे हैं ठीक है। अब लेट्स गो ऑन टू एक और, उसने यूरोजोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया है कि कैसे वो गिरता जा रहा है ओवर टाइम। All this leaves the ECB
with a dilemma. Should it increase interest rates substantially now to control the increasing rate of inflation and risk weakening economic growth even further? एक option. Or increase them slightly in the hope that supply pressures will ease soon. This runs the risk of making high inflation more permanent if the pressure does not ease or leave the interest rates unchanged. तो monetary policy पे तो question आए कि आए. अब let's see जी, describe what has happened to consumer prices in Eurozone between March 2021 and February 2022. Please remember हमने overall trend बताना है कि prices बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं सीपीआई को देख के. फिर बीच में से कुछ जनरलाइज्ड या स्पेशल फिगर्स पिक कर लें. या तो हम कोई एवरेज दे सकते हैं या स्पेशल कोई मंथ्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा या इन्फ्लेशन नहीं हुई, समथिंग लाइक दैट. अब बच्चों तसल्ली से देखें, मुझे बताएं जी, फेबरी मार्च 2021 से लेके फेबरी 2022 तक क्या हुआ है, प्राइस लेवल इन्फ्लेशन क्या हुई है. ज़्यादा हुई है. और अगर चलें, ये तो खैर वो है, अगर ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन का डायग्राम होता और ये नीचे भी आ रहा होता, जब तक जीरो से नीचे ना जाता डिफ्लेशन नहीं थी, डिसइन्फ्लेशन थी, प्राइसेस स्टिल बढ़ रही थी. तो यस, इन्फ्लेशन हैज जनरली इंक्रीज थ्रू आउट द पीरियड. वन मार्क जी. सेकंड मार्क कहाँ लेंगे, कोई स्पेशल फिगर पकड़ लें या ओवरऑल. फरवरी 22 में बहुत तेजी से बढ़ी है, राइट. और बताएं मेरे बच्चों, एनीथिंग एल्स, किसी महीने में कोई और ऑडिटी नजर आ रही हो, या ओवरऑल कितने परसेंट प्राइस लेवल बढ़ा है. 106.53 था ओरिजिनली, अब 111.74 है. तो बच्चा मुझे बता सकते हैं. कुछ गलत कर रहे हो बेटे, कुछ गलत कर रहे हो, आप डायरेक्ट माइनस कर रहे हो. यूज द फॉर्मूला CPI 2 माइनस CPI 1 ओवर CPI 1 इंटू 100. CPI 2 क्या है, 111.74 माइनस 106.53, ये ब्रैकेट है. जो आंसर आए 5.2 जो भी आए आपका, डिवाइडेड बाय 106.53 इंटू 100, मेरे ख्याल में कोई 5 से कम होनी चाहिए. 4.89. आई साउंड्स जस्ट अबाउट राइट. अमल, आपको समझ आया क्या गलती हुई यहां पे. आपने डायरेक्टली फिगर्स माइनस कर दिए, तो इसलिए ट्राई एंड राइट टू थ्री थिंग्स. प्लीज डू नॉट गो मंथ बाय मंथ, दैट फ्रॉम March 21 to June 21 it kept rising, then it fell, then it rose. नहीं, ओवरऑल बताना है ट्रेंड. ओवरऑल प्राइस लेवल रोज. सॉरी, परसेंटेज चेंज मेरा बेटा. CPI 2 माइनस CPI 1, आपके पास CPI फिगर्स है ना. CPI 2 माइनस 1 ना मेरा बेटा. CPI 2 आपका लेटेस्ट होता है ये वाला, डिवाइड माइनस CPI 1 ये वाला. फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करोगे CPI 1 ये वाला इंटू 100. अमल, अब समझ आ गई बात. न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय, जो आंसर आए डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100. परसेंटेज चेंज अभी तक क्यों नहीं आ रहा बच्चों. ना मेरा बेटा, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100. जैसे मेरा बेटा 2 से 3 पे गई है कोई चीज, चेंज 3 - 2 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तभी परसेंटेज चेंज निकलेगा ना. हमेशा ओरिजिनल वैल्यू नीचे लिखनी है. क्लियर हो गया अमल. एनीवन नॉट क्लियर, प्लीज पूछ लें. ये एग्जाम में हमें 2 मार्क्स अपने लूज करोगे.
तो लेट्स गो टू द मार्क स्कीम एंड लेट्स सी व्हाट आर दिस सेइंग। जी, जी, for example, consumer prices या inflation या CPI have risen over the period 1 mark by 4.89%। वो कहता है 4.8 और 4.9 को बचा लिख दे, उसके बीच में मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, उसने राउंड अप कर दिया तब भी। रोज एक्सेप्ट एवरी मंथ एक्सेप्ट फॉर जुलाई 2021। फिर उसने गाइडेंस में और क्या बोला, अदर एग्जाम्पल्स में इंक्लूड द लार्जेस्ट इंक्रीज वॉज इन फेब्रुवरी 2022। कुछ भी ऐसा सही लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। सबको समझ आ रही है? पहले ट्रेंड बताना है, फिर फिगर्स यूज करने हैं, जैसे हमने 4.89 यूज किया, या किस मंथ में कुछ बहुत ही अब काम हुआ। गॉट इट मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? All right, I hope not. Let me just see how many kids have come. मज़ा नहीं आया। चले, let's carry on at least. शायद ये ईद के बाद ठीक हो जाएगा। Let's move on to next question. With the help of an aggregate demand and aggregate supply diagram, identify the main type of inflation in the eurozone. यूरोजोन में इन्फ्लेशन क्यों आई है? जरा देखें, बहुत साफ साफ उसने इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तसल्ली से देखें। आप क्या करेंगे, कौन से कर्व को किधर शिफ्ट करेंगे टू शो इन्फ्लेशन? जी बच्चों, वेटिंग फॉर योर आंसर, टेक योर टाइम। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। उसने कहा with the help of an aggregate demand and aggregate supply diagram, identify सिर्फ करना है the main type of inflation in the eurozone। अब आपके पास लास्ट, सॉरी, अगेन थोड़ा सा वेग टर्म बोलिए आप अमल। ये मैक्रो है, क्या बोलेंगे? कॉस्ट पुश है, मान गया। हम कौन सी टर्म बोलेंगे अमल सप्लाई की जगह? एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, जिसने भी बोला था सप्लाई, प्लीज इसको एग्रीगेट सप्लाई कीजिएगा, और डायग्राम में भी ADAS लिखिएगा, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। जी बेटे जी। क्या? नहीं, उसके रिजल्ट में जो भी इफेक्ट हो रहा हो, लेकिन अब्दुलरहमान, कॉस्ट तो सप्लाई साइड है ना, कॉस्ट पुश आपने खुद बोला, तो आप डायग्राम में डिमांड वाला क्यों बनाएंगे? और ऊपर से डिमांड पुल इन्फ्लेशन में तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही होती है। कॉस्ट पुश कॉजेज स्टैगफ्लेशन। लेबल करवाएं जी मुझे, क्या लिखना है वाई एक्सिस पे? यस। अगर आपके पास टाइम कम है, GPL लिखते हैं, जनरल प्राइस लेवल, और अगर टाइम और कम है, इधर वाई लिखते हैं। वैसे नॉर्मली रियल GDP एंड प्राइस लेवल, दिस इज योर करेक्ट लेबलिंग। ठीक है, अब मेरे बेटे, व्हाट डू यू नीड टू डू? डोंट मिस दिस। ADAS बनाएंगे भी, मेहनत भी करेंगे, और मार्क नहीं आएगा। प्राइस लेवल और नेशनल इनकम को वाई लिखते हैं, क्यू भी लिखते हैं, वो माफ कर देगा। अब मेरा बेटा एग्रीगेट सप्लाई को लेफ्ट पे, सॉरी, खाली प्राइस लेवल इज टोटली एक्सेप्टेबल अगर आप पूरा लिख रहे हो, और अगर आप, या अगर आप सिर्फ ये GPL लिख रहे हो तो उसको कोई शक ना पड़े, तब भी मैं कह रहा था कि GPL लिखें। ये आपका डायग्राम 1 मार्क। जैसे ही आपने लिखा कि भाई ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, दूसरा मार्क। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन यहां पे? सो हियर वी आर, दिस वाज क्लियर कट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मेरे हिसाब से अच्छे बच्चों के चारों मार्क्स यहां आने चाहिए। लेट्स मूव ऑन। अब जरा टफिश क्वेश्चन होंगे। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, जब भी वो ये टर्म यूज कर रहा है, ही इज एक्सपेक्टिंग 1 मार्क एट लीस्ट फॉर इवैल्यूएशन। Consider the extent to which the shortage of supply of labor in eurozone may contribute towards increasing the rate of inflation। अब तसल्ली से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें आप लोग।
सबसे पहले हमें एनालिसिस करना होता है। तो हम डेटा पे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये लास्ट पैराग्राफ है। जी, जी, बताएँ, शाबाश। कैन यू एक बार रिपीट योर आंसर? आपने स्टार्ट में कुछ अजीब-सा बोला है, दोबारा एक बार बोलेंगे अपना आंसर? हाँ, वेरी नाइस, लेकिन अगेन एक छोटी-सी गलती आप कर रही हैं। कौन-सा कर्व शिफ्ट होगा? Aggregate supply. Thank you. So shortage of labor will result in shift of aggregate supply to the left. Firms cost of production will rise. They will pass higher prices to consumer. ये दो मार्क्स कोई नहीं काट सकता इंशाल्लाह। अब मुझे बताएं, कंसिडर द एक्सटेंट। क्या सिर्फ यही वजह है या ये मेन वजह है? बताएं मुझे। आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि क्या यही वजह है? कितनी इंपॉर्टेंट है ये वजह, लेबर सप्लाई की शॉर्टेज? नहीं, आप डेटा में देखो मेरा बेटा, प्लीज डू नॉट गेस हियर। उसने यहां पे बहुत साफ साफ आपको बताया, मैंने हाईलाइट किया हुआ पैराग्राफ। किस तरह, कैसे? पेंडेमिक, और बोलें, बहुत कुछ लिखा हुआ है उसने। यस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, कोविड 19, पेंडेमिक, एनर्जी प्राइसेस, मेन चीज। इन तीनों की वजह से भी कॉस्ट बढ़ रही है। तो कॉस्ट राइज की वाहिद वजह लेबर सप्लाई की कमी नहीं है। अब इवैल्यूएट करते हैं, क्या हमारे पास डेटा में कोई ऐसी बात है कि हम बता सकें कि लेबर सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, या एनर्जी प्राइसेस, या कोविड 19? कुछ ऐसा दिया हुआ है? अग्रीड, लेकिन क्या लेबर सप्लाई, जो कि वन ऑफ द सप्लाई साइड फैक्टर्स है, क्या ये मेन रीजन है? किस हद तक ये कॉज करेगा इन्फ्लेशन? क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है? कहां गिवन है बेटे सुभान? कौन सा? उसमें क्या लिखा हुआ मेरा बेटा? नहीं, उसने कहा सिवियर इफेक्ट पुअर हाउस होल्ड पे। उसमें भी उसने नहीं बताया कि एनर्जी कॉस्ट कितने परसेंट हिस्सा है फर्म्स की कॉस्ट का। कोविड 19 की वजह से जो सप्लाई कम हुई है, रशिया यूक्रेन, उसने हमें कोई डेटा नहीं दिया। समझ आ रही है बात? सो कॉल इट। हाँ, अगर आप ये बात करो कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज फॉलन टू अ record low and is expected to fall further, and if it's the bigger part of the cost, then there'll be a really big rise in inflation, but it's not exclusively due to fall in supply. समझ आ रही है मेरा बेटा? लेबर की सप्लाई इज नॉट द एक्सक्लूसिव रीजन। सब बच्चों को समझ आ गया कैसे करना था? बेटे, आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि उसने क्या कहा। Consider the extent to which shortage of supply of labor in the eurozone may have contributed towards the increasing rate of inflation. पहले simple analysis, shortage of supply of labor will raise the wage rate, जैसे आपने बोला। This will add to firms cost of production. Aggregate supply will shift to the left, causing inflation. दो मार्क्स ये आ गए। अब मेरा बेटा, उसने कहा है कि किस हद तक शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर इसकी वजह बन रही है यूरोजोन में। तो उसने कहा, आप कहो डेटा में और कॉस्ट भी बढ़ी है, एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ी हैं, कोविड 19 का इफेक्ट भी आया है, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट का भी। अमल, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन को देख के कि किस हद तक? हाँ, मतलब फर्ज किया मैं आपको कहूं, किस हद तक ये क्लास आपको फायदा दे रही है। अगर तो इसमें से ही पेपर आ गया सेम, तो फिर तो बहुत फायदा दे रही है।
अगर कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, कोई खास फायदा नहीं दे रही, फॉलो कर रहे हो? सो ये वैल्यूएशन है ना, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट द सोल फैक्टर, although it seems to be one of the major factors, but we cannot pinpoint how much because the data is unclear. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? Okay, let's look at the mark scheme for this, just in case we misinterpreted something. For पिछले वाले का जी, for clearly identifying the main type of inflation in Eurozone is cost push. Inflation 1 mark, show on a correctly labeled diagram, price level, real GDP. That shows a shift to the left of AS curve, an increase in price level. Please do not use scales, ना अपना टाइम ज़ाया करें, पेंसिल से बना दें, लेकिन जस्ट साफ साफ से वैसे बना दें. इसमें मैं देखता हूँ बच्चे इतना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, रब कर रहे होते हैं, और बना गलत होता है एट द एंड. सो लेट्स जस्ट बी ग्रीडी फॉर मार्क्स, नॉट फॉर द एस्थेटिक सेंस ऑफ द पेपर. Consider the extent to which shortage of supply of labor in eurozone may have contributed towards the increasing rate of inflation. जैसे किसी बच्चे ने बोला था, shortage of supply of labor is likely to increase wage rates, 1 mark, which will increase business costs of production. There will cause cost of production, cost push inflation, shift aggregate to left. हमने ये सारी बातें की, 2 marks आ गए. However, energy costs have also increased further, adding to cost of production. Extent therefore depends on relative increases in cost due to wages and energy. किसमें ज्यादा इजाफा हुआ है, कौन सा बड़ा पार्ट था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का? इवैल्यूएशन तो ये है ना कि हम स्किल, हमारे पास ये है कि हमें पता नहीं है भाई, दो हमें डेटा दो, हम आपको बता देते हैं. समझ आ गया मेरे बेटा? चलें, गुड जी. लेट्स मूव ऑन टू द 6 markers नाउ. यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बेटे 6 marks वाले क्वेश्चन में, इवन 4 वाले में भी, अगर आपको कोई मेन की टर्म नजर आ रही है, जैसे पिछले वाले में उसने रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहा था, इसलिए मैंने डिफाइन नहीं किया था, खाली इन्फ्लेशन होती तो मैं फिर भी डिफाइन कर दिया करो. यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीईडी, डेफिनेशन फॉर्मूला एहतियातन दे दो. assess the relative impact on poorer households, including those on fixed incomes, of rising prices of food and energy. इसमें जो बच्चा 6 marks ले गया विल बी अ स्टार. तसल्ली से मुझे आप लोग ब्रेक डाउन करवाएं कि 6 marks कैसे आएंगे. टेक लीड. 1 mark पक्का, डिफाइन भी कर दो. डिफाइन कर दो बेटे. पहले पहले आप पीडी डिफाइन करें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. परफेक्ट, बिल्कुल सही है. परसेंटेज भी कह सकते हो, वरना ठीक है. इट्स अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस. फॉर्मूला दे दो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. 1 mark था, 1 मिल जाएगा, 2 थे, 2 मिल गए. अब जी, जो पुअरर हाउस होल्ड्स हैं, स्पेशली दोज हु आर ऑन फिक्स्ड इनकम, जब प्राइस ऑफ फूड एंड एनर्जी बढ़ेगी, उन पे वो कहता है रिलेटिव इम्पैक्ट पुअरर हाउस होल्ड्स पे या दोज ऑन फिक्स्ड इनकम अर्नर्स पे क्या आएगा. तसल्ली से पहले. ओके, वेरी गुड. और बोलें. असेस है मेरा बेटा. थोड़ा सा मुझे बताएं इन चीजों की डिमांड कैसी होती है. फूड एंड एनर्जी. इनइलास्टिक डिमांड. परफेक्ट. तीसरा मार्क आ गया. इनइलास्टिक डिमांड है, so even due to rise in price they will not be able to switch away. yes. और बोलें. उनकी इनकम्स फिक्स्ड हैं, प्राइसेस ऑफ फूड एंड एनर्जी बढ़ रही हैं. इट विल टेक अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम्स. अब ये खुद सोचें. 4 marks हो गए. अब जरा चलते हैं इवैल्यूएटेड कंक्लूजन की तरफ. पुअर हाउस होल्ड्स पे कितना इफेक्ट आएगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा? सॉरी, उनकी इनकम पे, कि क्या उनकी इनकम ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है या इन्फ्लेशन. क्या वो हायर वेज मांग सकते हैं? पुअर हाउस होल्ड्स आम तौर पे नहीं मांग सकते.
फिक्स्ड इनकम्स वाले तो बिल्कुल नहीं मांग सकते। तो इनको मैं कंक्लूड करूंगा, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी, या गवर्नमेंट इंडेक्सेशन कर दे कि जितनी महंगाई हो रही है उतनी वेजेस बढ़े, उतनी पेंशन्स बढ़े, अदरवाइज दे विल सफर। हम के एहतियातन रिच से भी कंपेयर कर देते हैं। रिच ऑन द अदर हैंड स्पेंड वेरी लेस ऑन फूड एंड एनर्जी, दे स्पेंड मोर ऑफ देयर इनकम प्रोपोर्शन ऑन एंटरटेनमेंट, लेजर, लग्जरीज। जी। सॉरी। हाँ बिल्कुल, वो तो लिखना है हमने। एडवर्स इफेक्ट डेफिनेटली इन पे आने वाला है, लेकिन कितना आएगा डिपेंड करेगा कि इनकी इनकम कितनी बढ़ रही है, या गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है इस बारे में कि नहीं। समझ आ गई बात? अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा, नहीं नहीं नहीं, दो बातें, दो बातें, यही बच्चे मिक्स कर जाते हैं। ऑन पुअर हाउस होल्ड्स, अब यहां पे इंक्लूडिंग दोज ऑन फिक्स्ड इनकम्स, उसने दोनों किस्म के बताए हैं। दोज ऑन सैलरीज बट पुअर, उनकी तो सैलरी बढ़ रही होगी ना कुछ हद तक, लेकिन पुअर हैं, हो सकता है ज्यादा वेज इंक्रीज ना होती हो। समझ आ रही है? ज्यादा उनके पास बार्गेनिंग पावर ना हो। जी बच्चों, अब मुझे बताएं, मुझे बहुत कम बच्चों की आवाज आ रही है। अमल की आ रही है, अब्दुल रहमान की आ रही है, अदर्स, व्हाई आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग? सो एक दफा सुभान, मुझे जरा पूरे ये 6 मार्क्स कोशिश करें लेने की। सबसे पहले बेटे क्या करोगे? सुभान, don't be shy, take an initiative. Doesn't matter if you get it wrong, we're learning. Okay, somebody else volunteer apart from the kids who have been already participating. मैंने सारा आंसर दे दिया, बस मैं चाह रहा हूं आप लोग रीइटरेट कर दें। ये वाकई मुश्किल क्वेश्चन है। नोबडी एल्स जी? ये खामोशी आपको महंगी पड़ेगी एग्जाम में। प्लीज स्पीक, ताकि मुझे पता लगे कहां कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। और राइट, जो बोल रहे थे उन्हीं में से कोई बोल दो बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे? कम ऑन, डिफाइन फॉर्मूला ऑफ पीडी। एक, मैक्सिमम टू, एक ही माइंड में रखें। उसके बाद जी, एज प्राइसेस ऑफ एनर्जी एंड फूड राइजेस। हम्म। हम्म। यानी जितनी भी प्राइस बढ़ जाए, डिमांड प्रोपोर्शनेटली थोड़ी गिरेगी। उनके बजट का, यस, उनके फिक्स्ड इनकम वालों पे बहुत। हाँ, शाबाश शाबाश, बोलते जाओ। रियल परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, रियल इनकम गिर जाएगी। मजीद पूरा रियल टर्म्स में, वेरी गुड। लेकिन डिपेंड किस चीज पे पड़ता है कि उनकी इनकम बढ़ती है कि नहीं, और प्राइसेस ज्यादा बढ़ रही हैं कि इनकम। और लास्ट चीज, गवर्नमेंट कितना हेल्प करे। जी बेटे। जरा ऊंचा बोले अब्दुलरहमान। आइदर 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 का मार्क होता है बेटे, दोनों का मार्क होता है। आई एम श्योर दोनों का होता है। लेट्स लुक एट द मार्क्स। हाँ, असल इवैल्यूएशन तो यही है ना कि प्राइसेस ज्यादा बढ़ रही हैं कि इनकम। फिक्स्ड इनकम वाले तो डेफिनेटली मार खाएंगे, अनलेस गवर्नमेंट कुछ इंडेक्सेशन वगैरह कर दे, उनकी उनकी पेंशन्स को, या उनकी सेविंग्स को इंटरेस्ट के साथ, सॉरी, इंटरेस्ट को लिंक कर दें इन्फ्लेशन की इंडेक्स के साथ। तो अब जरा देखें, लेट्स सी अब्दुलरहमान की बात। कौन सा टाइप ऑफ? नहीं मेरा बेटा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे पीईडी है ना, हम वाईडी थोड़ी कर रहे हैं। पीईडी में तो नेसेसिटीज है ना, इनकी तो कंफर्म इन इलास्टिक डिमांड है। अब जरा मार्क्स देखिए।
For a fully accurate formula of PD and or an explanation of what it measures in terms of responsiveness या percentage change in quantity demanded compared to a change in price. अब्दुलरहमान दोनों का मार्क है, एक ही है. For an explanation that food and energy would be classed as necessity goods and therefore price inelastic, meaning that quantity demanded would be less responsive to a change in price. मैं तो प्रोपोर्शनेट वाली बात कहूंगा. ग्रेटर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज lesser proportionate fall in quantity demanded. For an explanation that poor household, including fixed income households, would suffer a great detrimental slash negative effect, यहीं पे मार्क मिल गया. If their in because their incomes does not rise in line with inflation or they're unlikely to be in a position to negotiate, ये slashes हैं. आपने जैसे ही कहा कि पुअर इनकम वालों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा बिकॉज उनकी इनकम्स फिक्स्ड है या नहीं बढ़ रही उतनी जितनी महंगाई बढ़ रही है. तीसरा मार्क आ गया. चौथा, सिचुएशन कैन बी ओनली ओवरकम इफ गवर्नमेंट असिस्ट विद फूड एंड हाउसेस एंड एनर्जी प्राइसेस. अब ये अक्सर बच्चे मिस कर जाएंगे. कम से कम इवैल्यूएशन कर दो that clearly assesses the extent of the impact solely on lower income households, e.g., by considering the amount of possible government assistance possible, degree to which such households can compensate for price rises, like rise in income का उनके पास कुछ सेविंग्स थी, उनके पास कुछ ऐसा था, इस तरह की बात करके. दूसरी अप्रोच वो क्या कह रहे हैं, फोर्थ मार्क कैन बी गिवन फॉर अ कंपैरिजन टू हाई इनकम हाउसहोल्ड्स who are probably in a position to either negotiate for income increases in line with inflation. बेटे किसी का माइक ऑन है वो कुछ पी रहा है, माइक बंद कर दो. और absorb the rising prices of food and energy. और नीचे देखो that clearly assesses the relative impact on different type of households including high income households. Example, the proportion, ये बड़ा जरूरी था. गरीब अपनी इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन स्पेंड कर देते हैं फूड एनर्जी पे. अमीर की इनकम का बहुत थोड़ा हिस्सा जाता है तो उसके ऊपर इतना असर नहीं होता. समझ आ गया मेरा बेटा? आइदर अप्रोच, या आप सिर्फ फिक्स्ड इनकम और पुअर पे बात कर रहे हैं तब भी ठीक है, रिच को साथ कंपेयर कर रहे हैं तब भी ठीक. एवरीवन क्लियर ऑन दिस? इसमें जो बच्चा 6 स्कोर करेगा डिस्टिंक्शन पोटेंशियल वाला बच्चा होगा. सो एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? एनी क्वेश्चंस? अगला क्वेश्चन seems relatively easier. Assess the advantages and disadvantages of European Central Bank substantially increasing the interest rate to control rising inflation. आपको सप्लाई साइड प्रॉब्लम थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना आपको अच्छी पॉलिसी लग रहा है? यहां पे जरा सोचें. पहले तो बताएं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कैसे इन्फ्लेशन रुकती. यस, तो ये गलत पॉलिसी है. हाँ, अब इसका हमें एडवांटेज लेने हैं तो पहले हम उसकी बात करते हैं. Rise in interest rate will increase cost of borrowing and return on saving. People will borrow more, borrow less, spend less. Firms will invest less. As a result, aggregate demand will fall, and if there was any demand pull inflation, that will be reduced. However, eurozone is experiencing supply side issues, cost push inflation. तो यहाँ पे जैसे इस बच्चे ने बोला मजीद कॉस्ट बढ़ेंगी. उनकी बोरोइंग जिन्होंने ऑलरेडी की हुई थी, कंज्यूमर बोरो जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ था या फर्म्स, उनकी तो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बढ़ गई, उनकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई. इसके अलावा अब हम जरा करते हैं जी मेरा बेटा, जरा ऊंचा बोले. ये बात करें, यस, हॉट मनी अट्रैक्ट होगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, लॉन्ग रन में करेंसी अप्रिशिएट होगी. बिल्कुल बताएं, जरूर बताएं. यस, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हॉट मनी आएगी हमारे बैंक्स में, करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, वो ऊपर जाएगी, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कम, वहां से इन्फ्लेशन कम हो सकती है. लेकिन इवैल्यूएट करवाएं क्या ये सही पॉलिसी है या हमें कोई और यूज करनी चाहिए. कॉस्ट पुश के लिए बेस्ट पॉलिसीज कौन सी? सप्लाई साइड, यस. हम्म, एब्सोल्युटली. लेबर शॉर्टेज का मसला भी खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग से. समझ आ गया कितना इजी है अगर हम तरतीब में चलें. देखो बेटे, बच्चे अक्सर दे फॉल टू द प्रे कि सीआई ने क्वेश्चन सेट किया, गलत कैसे हो सकता है. हो सकता है बच्चों, हो सकता है.
दे वांट टू टेस्ट यू कि इनको यही तो फर्क है मैट्रिक और ए लेवल में। ठीक है, अब लेट्स क्विकली गो टू द मार्क स्कीम। मैं थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन और भी करवा लूं। Assess the advantage up to 2 marks for explanation of the advantages of substantially increasing the interest rate to control inflation. It will curb demand pull inflation by reducing aggregate demand, as it is a relatively quick and easy policy to adopt. 2 marks तो सबके आ गए। Up to 2 marks for analysis of the disadvantages. Increasing the interest rate due to control rising inflation, e.g., this inflation is supply led and reducing aggregate demand will have little effect. And in fact, this policy may add to supply cost and cause other unintended serious consequences for the economy. बिला वजह अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पे भी हम जा सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से। Evaluation that clearly considers both advantages and disadvantages compares with an alternative policy. कि this is not the right policy, problem was supply side, तो हमें supply side policy use करनी है। और जो उसके अलावा रीजन कंक्लूजन देना है, क्योंकि वो लॉन्ग रन में सब करेगा। वो कहता है जी क्या आउटवे कर रहे हैं डिसएडवांटेज एडवांटेज को, नहीं कर रहे, डिसएडवांटेज ज्यादा है, गलत पॉलिसी हमने सिलेक्ट कर ली। सब बच्चों को क्लियर हो गया या थोड़ा सा और? ओके, लेट्स नाउ look at my recording. Yeah, it's still going fine. अब let's choose, जल्दी से choose करें and I know which one you'll choose. कुछ बच्चों ने गलत choose किया था और मैंने उनको बहुत डांटा था, तसल्ली से देखें। 3 वाला, yes, there is no question. जीनी क्वेश्चन तो बच्चों ने अक्सर रिवाइज ही नहीं किया होता। खैर वो करेंगे कल की क्लास में। अब हम 3 वाले को तसल्ली से देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ना मेरा बेटा, यूनिट 5 उठा के देखो, एंड पे जीनी कोएफिशिएंट का पूरा उसमें सेक्शन है। इट हैज मूव टू A1, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। A1 में सिर्फ इतना है कि जीनी कोएफिशिएंट मेजर्स इनइक्वालिटी, जीरो के पास हैं तो ज्यादा फेयर इनकम है। हम्म इट विल बी गोइंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। कर सकते हो क्योंकि सिर्फ 3 मार्क्स है नॉलेज के, कर लो, कोई मसला नहीं है। A2 वाले कर सकते हैं। लेट्स गो टू नंबर 3 राइट नाउ। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ ईच, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ मेरिट गुड एंड अ डीमेरिट गुड। और ये तो इवन जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स क्लास से गुजर जाए ना एक दफा, उनको पता होता है। तो प्लीज बच्चों, सरप्राइज मी, अ न्यू वॉइस। बताएं बताएं, व्हाट इज मेरिट गुड, एग्जांपल भी दें। शाबाश। हम्म एग्जांपल एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल। लाइट हाउसेस गलत बोल रहे हैं ना मेन। वैक्सीनेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, म्यूजियम्स, सीट बेल्ट्स, ये आपकी मेरिट गुड्स हैं। तो बिल्कुल ठीक बताया मीन ने। अब किसी बच्ची की आवाज में मैं सुनना चाहूंगा डीमेरिट गुड्स क्या होती हैं, एग्जांपल दें। परफेक्ट, ये शहरजाद थी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। A2 के बच्चे साथ में बोल देना, दे ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नल कॉस्ट लाइक पैसिव स्मोकिंग, हार्म ऑन थर्ड पार्टीज, ताकि और अच्छा लगे। 3 मार्क्स नॉलेज के आगे। एक्सटर्नल बेनिफिट्स बताएं, बिल्कुल। नेक्स्ट जी, and consider whether a subsidy given to merit good will always be effective in increasing consumption. तसल्ली से पहले सब्सिडी को भी डिफाइन कर दें। जिसने डायग्राम बनाना है वो डायग्राम भी बना दो। मुझे बताओ सब्सिडी देने से मेरिट गुड्स की कंजम्पशन पे एक्सपेक्टेड असर क्या है, फिर हम इवैल्यूएशन पे आएंगे। बोलते जाएं, शाबाश, हैप्पी हैप्पी बोले। यस। ओके। हम्म। यस। यस। यस।
क्योंकि अनअवेयर के अलावा बेटे नेसेसिटीज भी है ना, हेल्थ एजुकेशन आर नेसेसिटीज, तो इसलिए इनकी डिमांड इनएलास्टिक होती है, तो कंजम्पशन इतनी इंक्रीज शायद ना करे। अब थोड़ा सा और बात करें, सब्सिडी में गवर्नमेंट क्या गलती करती है, स्पेशली A2 स्टूडेंट्स, सब्सिडी में गवर्नमेंट क्या गलती करती है? ओवर या अंडर, या तो बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दी या फिर बहुत कम दी, कॉस्ट इतनी कम ही नहीं हुई। फर्म्स क्या करती हैं सब्सिडीज को अक्सर मिस यूज करती हैं, अपने पुराने डेट्स पे कर देती हैं, या फिर वो सब्सिडी को पास ऑन टू कंज्यूमर्स नहीं करती, अपना प्रॉफिट बढ़ा लेती हैं अनलेस गवर्नमेंट चेक अच्छा हो। सो क्या सब्सिडी हमेशा इफेक्टिव होगी? मुझे बताएं, कंक्लूजन दें। Yeah, it will depend on PD, government intervention, how economic agents respond. क्या साथ साथ कोई इंफॉर्मेशन फेलियर के बारे में भी कुछ कर रहे हो कि नहीं? डिमांड कैसी है, इलास्टिक अगर है तो फिर तो बहुत इफेक्टिव है, वरना नहीं है। समझ आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन। जी मेरा बेटा, कर सकते हैं। कंज्यूमर कितना वैल्यू दे रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जितनी मर्जी सस्ती कर दो एजुकेशन, नहीं करेंगे। नॉलेज के तीन, एनालिसिस के तीन, इवैल्यूएशन के तीन। सॉरी, अब आगे हैं हम इस पे। सबसे पहले बी ही चल रहा है, 3A। जी, a merit good is thought to be desirable but is underprovided, underconsumed due to information failure, lack of awareness, benefit than it's realized। हर स्लैश पे आपको मार्क मिल रहा है, मतलब मिलेगा एक ही किसी ऐसी बात करने पे जो आप लोगों ने कर दी। फिर द डीमेरिट गुड इज थॉट टू बी अनडिजायरेबल बट इज ओवर प्रोवाइडेड, ओवर कंज्यूम ड्यू टू इन्फॉर्मेशन फेलियर, लैक ऑफ अवेयरनेस। दोनों का एक एक एग्जाम्पल, एजुकेशन हेल्थ केयर फॉर मेरिट गुड्स एंड cigarettes, alcohol for demerit goods. Points to consider: a subsidy may encourage poorer households to consume more merit goods, as the reason for underconsumption may be unaffordability. Good. However, quantity demanded may be price inelastic, meaning it is less responsive to price changes. So, quantity demanded will be less responsive to change in price. Price and quantity demanded would be less than decrease in price. जिस एंगल से भी बताओ, the problem of information failure still persists, meaning consumers remain unaware of the benefits and therefore do not increase consumption. For a balanced evaluation of whether a subsidy will always be effective, इसी एनालिसिस को उठाओगे। It will depend on the level of information failure, the elasticity of demand, size of subsidy. Therefore, we cannot say that subsidy will always be effective in controlling the market failure of merit goods। जी मेरे बच्चों, कर दो। मशवरा, मशवरा, मुफ्त मशवरा इज वेरी गुड। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शाबाश, गुड वर्क। जी मेरे बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू, बट डोंट गो टू आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन। Assess whether fixing a minimum price is likely to be the best policy to reduce the consumption of demerit goods। अब बेस्ट लिखा हुआ है तो क्या मतलब है इसका? आपने बताएं मुझे। कम अज कम एक और पॉलिसी से कंपेयर करना है, कम अज कम एक और, मैं कहता हूं दो कर दो। तो लेट्स स्टार्ट जी। मिनिमम प्राइस को डिफाइन कीजिए, टाइम जरा थोड़ा कम है, जल्दी से। प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग दोबारा बोले अमीन। मिनिमम प्राइस इज द प्राइस फ्लोर सेट बाय द गवर्नमेंट। हम्म, और ये कहां इफेक्टिव होती है? अबव इक्विलिब्रियम। और ड्रॉ कर दें, नहीं मांगा उसने लेकिन ड्रॉ कर दें। मिनिमम प्राइस के रिजल्ट में फायदे क्या हैं जी? डीमेरिट गुड्स विल बिकम एक्सपेंसिव। कौन से कंज्यूमर्स? पुअर कंज्यूमर्स की रेंज से अल्कोहल जैसी महंगी डीमेरिट गुड्स वाइल गो आउट ऑफ देयर रेंज। ठीक है, जिसके रिजल्ट में यू नो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कुछ हद तक कंजम्पशन कम हो जाएगी। अब जी, नुकसान क्या है? मिनिमम प्राइस के रिजल्ट में क्या पैदा होता है?
अरे वो तो है, और बताएं। सरप्लस, सरप्लस सरप्लस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर उसके रिजल्ट में क्या होंगी? ब्लैक मार्केट्स क्रिएट होंगी, जहां पे लोग अंडर हैंड, अंडर द टेबल, लो प्राइस पे ट्रेड करेंगे इलीगल मार्केट्स में। ड्रग गैंग्स को फायदा होगा। पीपल में मूव टू चीपर demerit goods which are of low quality, which will hurt their health even further। गवर्नमेंट को पुलिसिंग करनी पड़ेगी, छापे मारने पड़ेंगे। टाइम कम है इसलिए मैं खुद ही बोले जा रहा हूं। तो एज अ रिजल्ट, अच्छा मैंने थोड़ा सा मिस किया, अच्छा पिछले में डीमेरिट गुड हम बता चुके थे, वरना नॉर्मली डीमेरिट गुड को प्रॉपर बताना होता है। ये सब करने के बाद क्या दूसरी पॉलिसी आई जी? और क्या कर सकते हैं हम डीमेरिट गुड्स के लिए? Yes, yes, sorry, I missed it. Inelastic demand to minimum price will not be very effective in reducing demand. Advertising, indirect taxes, हम कई बार कर चुके हैं। बिल्कुल सही है। सो या जी, good enough, good enough. Let me just quickly sum it up now. We will start with minimum price key definition. It's a law by the government whereby producers cannot charge below a legal price set. It is always set above equilibrium to be effective. Minimum price, once imposed, will make demerit goods expensive, and expensive demerit goods like alcohol will go out of the reach of poorer consumers. Even some rich consumers will reduce the demand. As a result, market failure will be reduced. However, minimum price often results in surplus and creation of black markets, where producers and consumers deal under the table at lower than minimum price. Because consumers are addicted, they'll be willing to pay willing to buy it from black markets. Government will have to ensure the policy, policing cost will rise, plus the demand for demerit goods demerit goods tends to be inelastic. It will be not very effective. There will be very proportionately less fall in quantity demanded. गवर्नमेंट की काफ़ी कॉस्ट लगेगी टू इंश्योर द पॉलिसी। अब दूसरी पॉलिसी जी, वी कैन यूज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। गवर्नमेंट कैन इम्पोज हैवी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन डीमेरिट गुड्स, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी, पुअर कंज्यूमर्स की रेंज से बाहर निकलेंगी अल्कोहल वगैरह। लेकिन और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगा, जिसको वो मेरिट गुड्स प्रोविजन पे या इंफॉर्मेशन कैंपेन पे लगा सकते हैं। कुछ ना कुछ क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, लेकिन क्यों इफेक्टिव नहीं होती? इन इलास्टिक डिमांड, गवर्नमेंट अक्सर गलत अमाउंट ऑफ टैक्स लगा देती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत लगाओगे तो ब्लैक मार्केट्स पैदा हो जाएंगी। कंज्यूमर्स आर टू एडिक्टेड, दे मे स्टिल बाय एट अ हायर प्राइस। ठीक हो गया? अब इवैल्यूएशन out of the policies discussed, indirect taxes are most useful in short run because they immediately reduce the demand compared to minimum prices, which are often ineffective and difficult for government to control. अलबत्ता आप साथ में कह सकते हैं, the money generated from indirect taxes should be used on awareness campaign to reduce consumption of demerit goods in the long run as well. So minimum price is not likely to be the best policy. बच्चों क्लियर? क्लास बंद कर सकता हूं? अल्लाह हाफिज, सी यू ऑल एट 8:30 A21s। ईद मुबारक मेरा बेटा।